Welcome all the students. Today we're gonna start with operations management. So this time we're gonna move little fast because we have to recap and at the same time we have to take the additional slides too. So we have basically seen the entire content of the operational management. Next please. Which is like what is the introduction, the operational strategies, the capabilities we have, and analyzing the different types of layout to work for various problems because every industries are different in itself. We have also seen it's important for operations to forecast their demand and supplies because based upon their demand in upcoming seasons, they're going to plan the entire operations in the way back. Okay, so it's very important to forecast the operations. In the module 5th, we understand how to plan and control because anyways, everybody know how to drive a car, but it's also simultaneously important to control. So because forecasting is something cannot be done accurately. So there are always a change in plan which occurs seasonally. So it's important to control. So there are so many ways to control it. Next please. In the operations, we have seen the operational method is a set of procedures that will gonna give you the delivery, the product, the services that suit the specific goal. So आपको पता होना चाहिए आप कोई चीज़ कर रहे हैं तो उसका एड ऑन क्या है, मतलब बेसिकली आप यू आर चेंजिंग द फॉर्म. मतलब व्हेन ऑपरेशन इज समथिंग वेयर यू ऐड अ रॉ मटेरियल एंड ट्रांसफर द एंटायर प्रोसेस, यू डू सम चेंजेस एंड चेंज द फॉर्म ऑफ इट. सो ऑपरेशन इज दैट. So it has been derived from the parameters like cost, quality and time, which is obviously operational management offers so many planning, requirements, resource controlling, input, cost strategy. We're going to see it later. Okay, and this is the widest use case which I can see in any industry you found, either it's an education institute or hospital, any iron, steel industry, finance, banking, hospitals, anything. Operation plays a very significant role in run the business. So this is something where I have already been spoke about. Out of 25% of the top-notch CEOs come from the operation. Why? Because this is the soul of the business. And operation always depend on what? Minimizing the cost of operation per unit. So हमारा इंटेंट क्या है कि हम कॉस्ट पर यूनिट जितना कम करेंगे उतना बेटर. जस्ट टेक एन एग्जाम्पल कि एक क्लास में स्टूडेंट 30 हैं, 50 होंगे, द कॉस्ट ऑफ गिविंग द लेक्चर इज द सेम. इन द सिमिलर वे दिस इज रियली important. We have also seen what are the different models, process of operations. These are derived from the various, depending on the organization, its goal, and it is always important to eliminate the waste and maximize the profit by minimizing the cost per unit. Next please. Which we have already been done. Next please. We have also seen my project delivery. So delivery can be important to understand. To operation effectiveness can be understood by characteristics. हमने ये अच्छे से समझा है ये last class में. There are some characteristics of organization where you need to understand the organization interface, how the company interact with the customer, what is the scalability percentage, how much they can customize the product based upon their customer requirements. They need to understand the customer priority, whether the customer is a cost centric or time centric, and the quantity or the quality centric. So it's very important to manage the entire process of delivery by managing inventory, material, resources, standardization, and make the entire process as simple as it can be. We have also seen there are various types of challenges we have found in the operation management. The first is there was always a crisis that provide the inefficiency, and we need to work as a firefighting systems. We also seen a very close cleanup of process. We can also help the IT to make the repetition work easier. These are the technology which changes every 2 years, 3 years. So it's very important to be live in the market. You have to take care what are the advances which are happening in the field of technologies. Next we have seen a complacency.
third we have seen the performance metrics and the outsourcing. Like obviously we have taken the example of automobiles, like how the 90% of the equipments of Maruti which is being used in manufacturing the car, it is being outsourced. So it's very important to understand the importance of operations and the procurement strategies. So anyways, when you are assembling the entire car and that is something which is being produced only for the in the entire assembly line, the car manufacturer only has to operate with three assembly. The first is bench press, where the sheets are being pressed and they form into the frames. When the frame goes to the next section, that is the welding section, they weld the entire form sheets and they make the structure of the car. And then they go to the paint shop where the entire structure is being painted, and then they go to the assembly line, and none of them are being constructed by Maruti. So it's very important that operation should control the purchasing also, because I have seen in Maruti when I was working in L&T where there is no stockage is there. They don't stock it. They just unload it, test it and assemble it. Simple. Unload, test, assemble. So this is how it's very important to keep a good eye on your outsourcing, and by maintaining the very clear, good relationship with the supply chain management. We have also seen in the last class where we have find some of the mapping process where we ensure that all the process are been documented. एंड हम लोगों ने बताया था, बात किया था कि कैसे कैसे डिफरेंट बॉक्सेस के अंदर हम ये समझ सकते हैं कि वेदर इट इज़ द स्क्वायर बॉक्स इज़ अ प्रोसेस, द एरो लाइन इज़ अ कनेक्शन डिसीजन. सो वी हैव सीन कि एक प्रोजेक्ट ऑपरेशन मैनेजर एक ऑपरेशन मैनेजर का क्लियर आइडिया होना चाहिए कि कैसे वो रॉ मटेरियल को मूव करेगा एक मशीन से दूसरी मशीन में, और किस स्टेज में कौन कौन से डिसीजंस हमें चाहिए होंगे. That is very important, right? In the next slide we have seen what is the operation and delay. हमने बात किया था कोई भी एक्टिविटी जो ऐड ऑन करती है एक वैल्यू, वो हमारा ऑपरेशन होगा. And if it is not adding the value, it is what? It is a delay. We have taken the example of so many things. जैसे हमने ये बात किया था कि why जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया था वाइन्स का, कि वाइन्स को हम सालों साल रखते हैं एक केबिन में रख के, बिकॉज वो टाइमली उसमें ऐड ऑन करती है कोई चीज़ है. किसी के लिए वो वेस्ट हो सकता है, किसी प्रोडक्ट के लिए ऐड ऑन हो सकता है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एनी एक्टिविटी विच यू आर इम्प्लीमेंटेड इन द ऑपरेशन, it should add some value into it. If it is not adding any value, it will be a delay. If it is adding any value, it will be the operations. In the last one, we have also seen there is a Six Sigma process of identify the waste. There are different wastage which we have identified in terms of like inventory is there. Inventory, when you have a pile up in their product, it is going to be waste. When you are underutilize the people, talent, skill, knowledge, it is obviously a wastage of talent. When there is a waiting time, waiting for the next step to process, just like what we have understand that machine 1 and what is the time between machine 1 to machine 2, it is always a waiting. So we have to minimize those period times. We have unnecessarily movement of people like walking here and there. It's also been considered to be a waste. Defects, obviously when the product is not satisfying the specification standard, we have to rework on that product. If it is rework, obviously it is going to be taking some additional resources, or otherwise it is going to be considered to be the scrap. So defects is also be considered as a waste. The next we have transportation, moving of material unnecessarily, dumping in one areas and moving ahead, fit, redump, unload, loading. So that's always creates something which add nothing value into it. मैं वही बोल रहा हूँ ना, कोई चीज़ आप कर रहे हो उसकी वैल्यू नहीं है, तो obviously it has to be avoided. It has to be avoided. Sometime we used to have over processing.
So more work, higher quality, which is not required to by the customer. So it's very important to understand कि जो भी आप प्रोसेस कर रहे हैं आपको समझना है कि what is my customer requirements. So sometimes we over process it. It also considered as a waste. The last stage which we have studied is overproduction, where the production is where we are producing more than what we are required. Okay, this is where we have seen the system element. Suppose system elements has three important things. क्योंकि हमने बहुत सारी बात किया था लास्ट टाइम कि हमें ऐसा करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, वेस्टेज ये होते हैं, तो फिर हमने बोला था कि यार इसको हम छोटे फॉर्म में कैसे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अंडरस्टैंडिंग सिस्टम एलिमेंट. मतलब हर सिस्टम का ये एलिमेंट्स हैं जहां आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं. जैसे अंडरस्टैंडिंग द कैपेसिटीज़, हमें ये समझना पड़ेगा कि आप कैपेसिटी किसी भी सिस्टम की क्या है और प्रोडक्टिविटी कितना वो हम ले रहे हैं उसको, है ना. सपोज एक मशीन है, मशीन की कैपेसिटी 100 मेट्रिक टन पर डे की है एंड वी आर टेकिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ ओनली 60%. सो द वेस्ट परसेंटेज हैज़ टू बी चेक इन. सो आपको कोशिश ये करना है कि मैक्सिमाइज कर सकें हमारी कैपेसिटी प्रोडक्टिविटी को एज पर द कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम. सो हर एजेंसीज ऐसी करने की कोशिश करती हैं, वो हमारे कैपेसिटी को निकालती हैं, कैलकुलेट करती हैं. जैसे एग्जाम्पल दूँ, सपोज अपने वेयर हाउस है आपके पास, तो वेयर हाउस में आपको मालूम है 100 मेट्रिक टन का मेरे पास कैपेसिटी है, तो कितना मेरा यूज़ है केस है. सपोज 80% इज़ द मैक्सिमम यूज़. अभी कितना यूज़ हो रहा है? 60%. सो इट्स ऑलवेज यू हैव टू वर्क फॉर मैक्सिमम यूज़ ऑफ देयर कैपेसिटी. ओके, द थर्ड हमने समझा था द साइकिल टाइम. So these are the three elements where the operation manager has to control. He always have to add on the capacity first. Second, he has to very aware of productivity based upon the capacity. Third is the cycle time. There's a very good example of squeezing profits. Obviously, sometimes we have everything is in lineup, everything is okay. But at some of the time it becomes a bottleneck. Like example दिए थे मैंने स्क्वायर्स. आप देख रहे होंगे इंदौर में बहुत सारे फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, और फ्लाईओवर्स कहाँ बन रहे हैं? जहाँ जहाँ हमारे राउंड अबाउट्स हैं, जहाँ हमारे चौराहे हैं, वहाँ पे हमारा फ्लाईओवर्स बन रहे हैं. क्यों? क्योंकि जो ये राउंड अबाउट्स हैं बेसिकली इट इज़ नथिंग बट द bottleneck to the transportation. And suppose if the vehicle will going on in a straight path with a good speed, that time you will see the capacity of the entire road and the productivity which can be maximized to the greater extent. So it's important for the operation manager to look after their at which area the operations become bottleneck. So you have to understand, suppose there are 3 machines in the lineup and every machine is having a different capacity, right? 100, 50 and 40. So you have to create an equilibrium between on all 3 machines so that they can work at their maximum capacity. Okay, so because if machine 1 is producing at the rate of 100 and B can only process 40% of that, so 60% is obviously a waiting time. So it's better to assemble one additional machine so that out of 100, out of 60, 40 can be addressed. So 80 will be the waiting time. And obviously when you have understand that this is my 40, my machine C is actually have a capacity of 30. So out of 40, 30, so you have to create an equation which may maximize the output. So आपने पढ़ा होगा obviously matrix में कि you have to design the equation in such a way that it can maximize the system elements. So that is the maths where I don't want to enter, but obviously that makes sense that why math students are good in operations and this. So this is also a very relevant. हमने ये सब की बात कर ली थी, है ना. हमने वेरिएबिलिटी की बात करी थी. We have seen that there are so many variables that need to be dealt
फॉर द ऑपरेशन मैनेजर। हमने देखा था कि इंडिविजुअल के परफॉर्मेंसेस, स्किल सेट, उनकी प्रोडक्टिविटी लेवल अलग अलग होती है। और आपको मैंने एक बहुत अच्छी बात बताई थी कि एक पोजीशन और बीच में पोजीशन, सपोज 2 पोजीशन है, आप देखेंगे, एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, एक लेबर है, एक इंजीनियर है, देयर इज अ गैप विच इज फिल्ड बाय द सुपरवाइजर, है ना, एंड सुपरवाइजर हैज अ डिफरेंट सेट एंड डिफरेंट माइंडसेट. Similarly, engineer has a different mindset, different skill, different understanding. So it's very important to operation manager to deal with a different sets of values, skills. So you have to deal it on a regular basis. So individual variability, we have seen the material variability like consistency. हमने examples भी दिए थे. Suppose एक bakery वाले भैया हैं, वो आटा अलग अलग जगह से आता है, तो कैसे उनको मॉइस्चर कंटेंट मैनेज करना है, वो जो उनका प्रोडक्ट है वो कंसिस्टेंट के लिए. सो एक ऑपरेशन मैनेजर हैज़ टू वर्क इन लॉट ऑफ वेज. वी हैव ऑल्सो सीन देयर आर मिक्स ऑफ प्रोडक्ट. कोई एक कंपनी एक ही तरह का प्रोडक्ट नहीं बनाती है. वी हैव सीन द वेरियस एग्जाम्पल रिलेटेड टू ऑटोमोबाइल्स, है ना, अलग अलग मॉडल्स होते हैं, अलग मॉडल्स की गाड़ियाँ होती हैं. Okay, we have also seen that how the operation manager used to take care of staff variability, such as obviously मैंने example दिया था absentees. अगर कोई एक skill worker absent है, तो sometime sometime his absence may create a variable in the impact in the process. Yes, I can hear you. Sir, one question is there. Sir, आपने जो assignment दिया था, first assignment तो chart and graph and showing दिया ना, और second assignment का ये long term financial planning का बताया था, long term financial planning and stock. Three assignments or two assignments? Two assignments. ये long term financial planning तो सर इसमें क्वेश्चन मतलब कैसे एलोबरेट करना है? उसको मैं आपको एक और भेजता हूँ, आपको 2-4 असाइनमेंट्स है, आपको क्लियर हो जाएगा. ठीक है, ठीक है, मैं आपको भेजता हूँ, डिटेल आउट करता हूँ उसको. ओके, सो दिस इज़ व्हाट वी वर लुकिंग फॉर नाउ, बिकॉज अभी तक हमने ये समझ लिया है कि एक ऑपरेशन मैनेजर की बहुत जिम्मेदारी रहती है एक ऑपरेशंस को लीड करने में. चाहे वो आपका रॉ मटेरियल हो, चाहे वो आपका इन्वेंट्री हो, चाहे ऑपरेशंस हो, चाहे आउटपुट हो, चाहे कैपेबिलिटीज़ हो, बहुत सारे वेरिएबल से उसको जूझना पड़ता है. बट उसकी खुद की अंडरस्टैंडिंग उसे आगे लेके जाती है. यस और नो, उसे समझना पड़ेगा कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप एक कॉलेज में आके क्या देखते हैं? लिटरली आप बताइए, कॉलेज में क्या देखते हैं आप आके? यू हैव नेवर सीन द फैकल्टीज, नॉर सीन द वे ऑफ हाउ यू इज गोना प्रेजेंट. यू हैव ओनली सी द इंफ्रास्ट्रक्चर. You only see how the planning has been done. किस तरह से उनकी प्लानिंग की गई है, क्या आपका सिलेबस है, क्या हम पढ़ाएंगे, क्या फैसिलिटीज हैं, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या प्लेसमेंट्स है, राइट? सो दिस इज वेयर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑपरेशन मैनेजर. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट to lay out their infrastructure in such a way that you can maximize the operation output. Just take an example. You have 3-4 balancing. See, when it comes to the operation planning, it's very important to discuss the entire process of design and resource utilization strategies. So here is some breakdown of each points, which is a series process design. Can you see it? What is series process design? When one capacity is directly associated with another in a sequence, in a one single step. Okay, so this is a long flow time. So since the operation occurs can only possible after it, so the total time in the process may be the longer, and each must complete after completing
the first operation, then the second, then the third. You can see with the help of graph. So there is a box which is the operation 2 and 3. So this is called the sequence process design. Just take an example. ये कहाँ applicable होता है? The example is assembly line. मारुति cars या कोई भी cars बनती हैं assembly lines में, they are actually a series process design. क्योंकि एक सीरीज के होने के बाद ही दूसरी सीरीज होगी. सो फर्स्ट हमारा ये बहुत लंबी फ्लो होती है ना. कुछ एक्टिविटीज होती हैं, आपने देखा होगा, कुछ इन बिटवीन चालू हो जाती है, बट कुछ ऑपरेशंस आपको उसके बाद ही करने होते हैं. राइट, यू माइट बी कनेक्टिंग मी नाउ. अब जैसे असेंबली लाइन में आपसे क्या बोला, पहले क्या होता है, बेंच प्रेस होता है, फिर वेल्ड शॉप होता है, फिर पेंटिंग शॉप होगी, फिर आपकी असेंबली लाइन होगी. So after making the entire framework of automobile, then only you're gonna assemble it. You cannot do it before. So it is a good example of a series process design. So these layout, design of a layout is very important to understand by the operation manager. Now there is also a parallel operations, which actually a multitasking. You can able to understand or see that this is operation 1 and 2 can be done at a parallelly. Okay, so what happened here is when two tasks or operation occur simultaneously, so they are not basically dependent on each other. This is only possible when they are not dependent on each other. When they are not dependent on each other, then only the parallel operations can be simultaneously possible. So it is important that to identify by the operation manager what are the series process and what are the parallel process. So एक ऑपरेशन मैनेजर की जिम्मेदारी है कि वो लेआउट बनाए आपके प्रोडक्ट फ्लो का. ऑब्वियसली प्रोडक्ट आएगा, रॉ मटेरियल, सो रॉ मटेरियल आप कहाँ स्टैक करोगे आपको मालूम होना चाहिए. हाउ लॉन्ग इट विल स्टैक इट, आप क्या टेस्ट करोगे, क्या आगे प्रोसेस करोगे, क्लीनिंग के लिए भेजोगे, क्या आपका एक पूरा एक असेंबली लाइन होगा. एंड देन व्हेन यू एबल टू अंडरस्टैंड देयर आर ऑपरेशन व्हिच आर डन, सो नॉट अ डिले. राइट, हमने बात किया था बिजनेस ऑपरेशंस की, हमने बात किया था ऑपरेशंस की, हमने बात किया था डिले की. सो एनीथिंग व्हिच इज एडिंग अ वैल्यू इनटू द ऑपरेशन, इनटू द प्रोडक्ट, दैट इज द ऑपरेशन. हमने उसकी तरह बात किया था बिजनेस ऑपरेशंस की, जैसे एग्जांपल है सुपरविजन, है ना. तो वो भले ही वो एड ऑन नहीं कर रहे हैं कुछ भी, लेकिन वो बिजनेस ऑपरेशंस हैं, वो इम्पॉर्टेंट है ना. सो उसी तरीके से एक ऑपरेशन मैनेजर को इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू understand what are unlikely parallel operations and what are likely parallel operations. Now, indicating the situation where the operations are not run in parallel, obviously they're gonna lead with a different potential efficiency. Similarly, a likely operations refers with any idle case, okay, where the process can run parallelly. So, increasing the throughput and reducing the waiting time, obviously. So I think now if I talk about the example, I think bakery industry can be run parallelly, है ना. आपको मालूम है दो चीज़ अलग अलग तरीके से बन रही हैं. कैसे कुकीज़ अलग जगह बन रही हैं, आपके जो डोनट्स हैं वो कहीं और बन रहे हैं. So at the same time they can have separate sections because they are not dependent on each other. So bakery is a good example, right? The third one is a balancing line. What do you mean by the balancing line? Yes, so balancing line is something when it is ensured that each operation in the production line operates at a same pace to avoid the bottlenecks, where one process takes longer than the another. So there's a key consideration which need to be impact the operation, the entire process. Suppose just take an example. मैं आपको balancing क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको suppose just take an example of this one row, the operation 1, operation 2 and operation 3.
right? Now the capacity is 1 unit per day, second has a 2 unit per day, 3 has a 2 unit per day. There's always a synchronized between 2 and 3, but 1 is something is actually creating a bottleneck, because the operation 1 can only process 1 unit a day, where the second machine has a capability to process twice a day. So you have to create a balance between the entire system. So अब यहाँ सिंपल दिख रहा है हमें कि हम ऑपरेशन 1 की जो मशीन्स हैं वो अलग असेंबली में एक और इंस्टॉल कर लें पैरेलली, और जिससे कारण हमारा एक बैलेंस ऑफ लाइन क्रिएट हो सके. सो यूटिलाइजिंग देयर फ्लेक्सिबल रिसोर्सेज may required additional equipment and space. Obviously may required a trained resources to perform that. So here is the key factor here is कि आपको मालूम होना चाहिए कि आपके ऑपरेशंस में कौन कौन से ऐसे प्रोसेस हैं जो पैरेलली रन हो सकते हैं, और कौन कौन से ऐसे प्रोसेस हैं जो बीच में नहीं हो सकते हैं. जस्ट टेक एन एग्जांपल, कॉलम कैन बी कास्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द स्लैब. जब स्लैब डलेगा उसके ऊपर ही कॉलम आप डाल सकते हैं ना, है ना. तो आपको ऑब्वियसली इट कैन नॉट बी डन बिफोर इट. सो ये हमारा क्या प्रोसेस है, इट्स अ सीरीज प्रोसेस डिज़ाइन. सिमिलर वे मैंने आपको एक ऑटोमोबाइल का एग्जांपल लिया, पहले ऑपरेशन से मैंने बेकरी का एग्जांपल लिया. ओके, एंड द थर्ड वन इज यूटिलाइजिंग द फ्लेक्सिबल रिसोर्सेज. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू you must also have the flexible resources that can be used for move and adopted at a different task whenever they are needed. So the key factor here is they often comes with a costly affair. क्योंकि जब भी आप यूटिलाइज करेंगे फ्लेक्सिबल रिसोर्सेज का बैलेंसिंग करने की कोशिश करेंगे, तो आपको एक्स्ट्रा इक्विपमेंट्स, एक्स्ट्रा वर्क स्पेस चाहिए पड़ेगा टू साइमल्टेनियसली ऑपरेट इट पैरेलली, है ना. अब ऑब्वियसली हमारा इंटेंशन तो यही होगा कि हम अपने सिस्टम को मैक्सिमाइज करें. अब मुझे सिस्टम एलिमेंट कैलकुलेट करना है, तो मैं मैक्सिमम कैपेसिटी क्या बोलूँगा पिक्चर 1 में. सो मैक्सिमम आई कैन प्रोड्यूस 2 पर डे, है ना. सो वो हम कैसे कैलकुलेट करें, किसी की कैपेसिटी जितनी मैक्सिमम होगी वो हमारा मैक्सिमम कैपेसिटी होगा, लेकिन हमारा मिनिमम कितना होगा, जितना हमारा सपोज आपके पास 100 मशीन्स हैं, 100 मशीन्स में आपको ये कैलकुलेट देखना पड़ेगा किसकी कैपेसिटी सबसे कम है. ये मेरा मिनिमम कैपेसिटी होगा डिज़ाइन, कि हमें इतना आउटपुट मिलेगा, लेकिन आपको प्ले किसके बीच में करना है, मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में. सो आपको ये कैलकुलेट करना है कि मैं ऐसा रिसोर्स लगाऊं जिससे कारण मेरी कैपेसिटी जो मेरी प्लानिंग है, जो मेरी एग्जीक्यूशन कैपेसिटी है वो मेरी बढ़ जाए. तो आपको समझना पड़ेगा कि किस रिसोर्सेज मिनिमम यूसेज केस में मैं कितना मैक्सिमाइज कर सकता हूँ. ओके, सो दिस इज समथिंग इम्पॉर्टेंट है, वेयर यू कैन ऑल्सो सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशन. लाइक आपने ये देखा कि ऑपरेट 112 को हमने ऑप्टिमाइज कैसे किया. हमने 2 मशीन्स लेके आए ऑब्वियसली, जिसका प्रोसेस 2 हो गया क्यूमुलेटिवली, फिर ऑपरेशन 2 में गया तो 2 डेज ओके इक्विलिब्रियम हो गया. 3rd में गया तो हमारे पास इंटेंशन क्या होता है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, सारी मशीन्स की आउटपुट अलग अलग होते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट हमें इंटेंशन क्या होता है हमारे कि हम सबके आउटपुट को सेम कर पाएँ. बस ये हमारा इंटेंशन है ऑपरेशन. क्यों कर रहे हैं सब कुछ हम, क्योंकि हमें अपना बॉटलनेक जीरो करना है. देखिए इसके आप प्रीवियस स्लाइड करेंगे ना बॉटलनेक्स. सो प्रीवियस स्लाइड में हमने बॉटलनेक की बात करी थी. ये बॉटलनेक को फिनिश करने के लिए ना आपको इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप ये देखें कि मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है और मिनिमम कैपेसिटी क्या है. तो जो मिनिमम कैपेसिटी है इट क्रिएट्स अ बॉटलनेक. क्लियर हो गया. और मैक्सिमम कैपेसिटी क्या होगी, जिस मशीन की सबसे ज़्यादा कैपेसिटी होगी वो मेरा मैक्सिमम मेरा टारगेट होगा. सो मुझे अपने सिस्टम को इक्विलिब्रियम, सारे मशीन्स के आप आउटपुट लिखिए. सपोज मशीन X हैज़ 20, मशीन Y 30. मैं एग्जांपल दूंगा आपको और साथ में हम असाइनमेंट्स भी करेंगे, वर्क प्रॉब्लम कुछ लेंगे. सो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि आपके सारे मशीन्स के आउटपुट अलग अलग हैं. वो मशीन के आउटपुट का मैक्सिमम आउटपुट क्या होगा, वो 100 मशीन्स के ऊपर जिसका सबसे ज़्यादा आउटपुट होगा.
सो हमें ऐसी इक्वेशन डिज़ाइन करनी पड़ेगी जिससे हम सारे रिसोर्सेज को इक्विलिब्रियम में लेके आ पाए। जैसे हम लोग, आपने केमिकल इक्वेशंस किया होगा ना सॉल्व, केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम इक्वेशंस होंगी, वही इक्वेशन यहाँ पे इस्तेमाल होती हैं। तो मशीन ऑपरेशन मैनेजमेंट वही इक्वेशंस भी करता है यूज़ टू क्रिएट इक्विलिब्रियम विद इन द सिस्टम, क्या मिनिमम रिसोर्सेज लगा के मैक्सिमम आउटपुट कैसे रिसोर्स यूज़ कर सकें। एंड ऑब्वियसली क्योंकि हमारा एक टास्क होता है कि व्हेन एनी एडिशनल रिसोर्सेज हैज़ बीन एडेड, उससे आपको एड ऑन क्या हुआ, क्या कितना आपका प्राइस यूनिट कॉस्ट पर यूनिट कम हुआ, ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो ये बहुत बड़ा पैरामीटर रहता है जो मैनेजमेंट में देखना पड़ता है। अभी हमने जस्ट बात किया, दैट इज़ माय समथिंग कि कैसे हम किसी भी रिसोर्सेज को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। सो इंक्रीजिंग द कैपेसिटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो फर्स्ट वी कैन हैव द ऑप्शन ऑफ बाय इंक्रीजिंग द बॉटलनेक्स, जो मैंने आपको बताया कि जहां आपको लग रहा है जो मशीन सबसे कम ऑपरेट कर रही है उसके लिए मशीन दूसरा लेके आइए, फिर अपने सिस्टम को कैलकुलेट करिए, फिर आपको दिखेगा सिस्टम बी वाली मशीन और क्रिएट्स अ बॉटलनेक, तो बी वाली मशीन को ऐड करिए। फिर आपने देखा जो बॉटलनेक है वो डी में शिफ्ट हो गया है, तो वो डी मशीन को ऐड करिए अपने सिस्टम पे। आपको लगता है कि आपके पास डिमांड अभी भी आ रही है और जो बॉटलनेक है वो मशीन ई में शिफ्ट हो गया है, तो यू हैव टू अगेन बाय अ ई। अगेन यू वॉच करेंगे, उसको देखेंगे कि सी वापस कम्स इनटू द क्रिटिकल पाथ, जो क्रिटिकल मतलब जो बॉटलनेक क्रिएट कर रहा है, तो अगेन आपको सी मशीन खरीदनी पड़ेगी। एंड बेस्ड अपॉन आपका डिमांड, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि एक ऑपरेशंस के लिए आप उसको सिर्फ ये नहीं देख सकते कि कंप्लीट हो गया ऑपरेशन। एवरी टाइम यू हैव टू चेक द सिस्टम एलिमेंट्स एंड विच मशीन्स इज एक्चुअली क्रिएटिंग अ बॉटलनेक। सो जब भी वो मशीन्स बॉटलनेक क्रिएट करे तो आपके पास सिंपल डिज़ाइन होना चाहिए कि बॉटलनेक अपने मैनेजमेंट को बता दें कि सर बिकॉज ऑफ दिस ऑपरेशंस वी हैव टू परचेज एडिशनल रिसोर्सेज। अगर आपको कैपेसिटी बढ़ानी है तो हमें अपने लिए ये वाली मशीन ऐड ऑन करनी पड़ेगी सिस्टम में। ऐसा करने से हम बहुत सारी चीज़ें सेव हो जाएंगे। कैसे होंगे हम लोग कि हमें मालूम होगा कि हमें कौन सी एडिशन मशीन से हमें कितना एफिशिएंसी बढ़ जाने वाली है। तो वो कैसे होगा? वो होगा ऑब्वियसली जो सेकेंड हाईएस्ट सेकेंड लोएस्ट ऑपरेटिंग कैपेसिटी जिसकी होगी वो मेरी कैपेसिटी एड ऑन हो जाएगी। सपोज मेरे सिस्टम में 6 मशीन्स हैं, सबसे कम मशीन का जो आउटपुट है वो है 30 मेट्रिक टन पर आवर, राइट। 30 मेट्रिक टन पर आवर ही मैं प्रोसेस कर पा रहा हूँ और दूसरी मशीन्स की हैं 40। तो अगर मैं इसको ऐड ऑन भी करूँगा ना तो मेरे पास मशीन्स में पूरे सिस्टम एलिमेंट में प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ने वाली? 10 से, ना कि 30 से। क्यों? क्योंकि सिस्टम सी की जो मशीन की आउटपुट है वो सिर्फ 40 है, तो 40 बिकम्स द बॉटलनेक देन। सो इट्स ऑलवेज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस कैलकुलेशंस, क्योंकि बॉटलनेक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत आपको काम करना पड़ता है रेगुलरली और इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो जब भी डिमांड अगर बढ़ रही है रेगुलरली तो आपको आपके पास प्लान तैयार होना चाहिए कि कौन सा मशीन कब लाना है और कब क्या मेरा बॉटलनेक बनेगा। ओके, सो द फर्स्ट इज इंक्रीजिंग कैपेसिटी ऑफ द बॉटलनेक्स की कैपेसिटी बढ़ाइए तो आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। सेकेंड हमने देखा बाय एडिंग अ रिसोर्सेज एट द बॉटलनेक ऑपरेशंस। कई बार वी कैन ऑल्सो हैव द सिस्टम to involve additional allocation of resources like labor, machine space, है ना, so that their bottleneck efficiency can be increased। अब bottleneck जब भी बोल रहे हो तो स्क्वायर की बात याद रखा करें। तो चौराहे को कई बार इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि जहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा हो उसको टाइम ज़्यादा देते हैं, जिसके bottleneck कम से कम हो, है ना। So it is obviously you can be done with the help of some addition आपको resources। मैं आपको ये बोला, जैसे कोई भी मशीन्स है, अगर आपको लास्ट टाइम किसी ने मेरे से पूछा था कि सर कोई मशीन है अगर बाहर की है और बार बार उसका मेंटेनेंस आ रहा है and in India we do not have the capability to handle those maintenance, what can be done? So मैंने उसको आंसर दिया था कि it is better to split that entire process into the 2 machines।
एंड हम लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है कि हम ऑटोमेशन में बहुत ज़्यादा नहीं है अभी। तो हम लोग क्या करते हैं, किसी चीज़ को एक ही मशीन से किया जाता है तो हम उसको 2 मशीन से करते हैं, है ना। सो वेयर दी ऑटोमेशन बिकम लेसर, तो कंट्रोलिंग ज़्यादा होती है, आप स्पेसिफिकेशन बदल सकते हैं, आप चेंजेस अपने हिसाब से कर सकते हैं उसको। सो एडिंग रिसोर्सेज समटाइम ऑल्सो बी एडिंग द एफिशिएंसी ऑफ द bottleneck. Third, we always had like always to have a part of the bottleneck to process. See what I mean by this, it is always ensure that the bottleneck operation is never get idle, okay, and it is always is on work, मतलब उसको कुछ ना कुछ काम मिलता ही जाए, क्योंकि this reduce the waste time of entire system। बहुत important है कि आपके पास बॉटलनेक्स जो भी है ना, आपको चलना चाहिए, कियोस नहीं होना चाहिए। जैसे आप देखेंगे एग्जांपल, कभी कभी क्या होता है, चौराहों में लाइट का डिस्टरबेंस होने का सारे के सारे ट्रैफिक एक जगह आके कोलैप्स हो जाते हैं। यही हालत है इसका, क्योंकि वो एक ऐसा सिस्टम है जहाँ से पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो फिर खराब हो रहा है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट टू कंट्रोल योर बॉटलनेक मशीन्स so that you can reduce the waste time and maximize the output of the entire system, है ना। तो बहुत कियोस हो जाता है कई बार। Okay, so just take an example. If a production line required a part for the multiple supplier, so it should be ensured that supplier of the bottleneck of operations should be there to avoid any breakdown और स्लो डाउन दी प्रोसेस। तो हमें ये इम्पॉर्टेंटली मेंशन करना पड़ेगा कि हम अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए सबसे पहला बॉटलनेक्स के ऊपर ध्यान दें। हम उसको कैसे बॉटलनेक्स की कैपेसिटी इंक्रीज़ कर सकते हैं, बाय एडिंग सम रिसोर्सेज लाइक मशीन, लेबर्स। दूसरा, जो हमारे रिसोर्सेज हैं हम उसमें कैसे, मतलब क्योंकि मशीन्स हम लेके आएंगे तो ऑब्वियसली इट गोना बी एक्सपेंसिव, तो क्या हम उसको एडिशनल लेबर दे के, कुछ प्रोसेस लेबर से करा के फिर मशीन को दे दें। वी कैन डू इट। एनीवे हम इंडियंस हैं तो हम सोचते हैं कि कैसे जुगाड़ करके भी हम चीज़ें अपनी कम खर्चे हमारे कम से कम होना चाहिए, क्योंकि एक मशीन लेके आते हैं तो ऑब्वियसली दे देयर इलेक्ट्रिक कंजम्पशन, तो उसके हिसाब से आपको आपका जो कनेक्शंस हैं वो भी चेंज करने पड़ते हैं। सो देयर आर सम ऑफ दी अदर एडजॉइनिंग इशूज़ विद दैट। वो इतना बड़ा नहीं है, लेकिन आपका डिमांड कितना है, आपका विजनिटी कितनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। नेक्स्ट है हमारा, देखिए, एंश्योर दैट द बॉटलनेक वर्क ओनली ओ मीन्स ओनली। सी ये एक्चुअली इसने ये मेंशन पता नहीं क्यों नहीं लिखा है इसको। प्लीज एंश्योर दैट द बॉटलनेक वर्क्स ओनली ऑन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज। यस, वाओ। When I'm talking about value added activity, what I basically mean here means that the focus on the bottleneck operation exclusively on the task that where the value addition has been added to the final product, and that's why we're gonna eliminate or offload any non-value added task. Just like taking an example, removing any administrative task in the machine operations will be responsibility, allowing that more focus on the production rather than contribution of the output. So sometime हम लोग administrative task को skip कर देते हैं कि कोई बात नहीं, उसको skip कर देते हैं। तो obviously ensure that the bottlenecks work always on the value added activity, not on the any non value added activities, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वन हम देख पा रहे हैं, इंक्रीजिंग द टाइम द ऑपरेशन इज वर्किंग इन द क्वालिटी पार्ट्स। सी बेसिकली दिस मीन दैट मैक्सिमाइज द टाइम दैट अ बॉटलनेक इज वर्किंग ऑन गुड्स which basically usable part or not wasting the time in processing the defect items or performing any unnecessary task. So by increasing the time in the operation where the working is on the quality parts,
or not on the any waste on the any scrap और rework parts. तो हम bottlenecks को बहुत ज़्यादा आपको फोकस करना है कि वहाँ भी जो भी काम करें आप, it could gonna be added some value into the system. And last but not the least, I can say it minimizing the downtime is very important. कि भाई आपके पास स्पेयर पार्ट्स ख़राब होते हैं, आपको मालूम होना चाहिए विद टाइम, आपको आइडिया हो जाता है कि ये स्पेयर पार्ट्स ख़राब होने लगते हैं, वी शुड हैव टू बाय इट बिफोर. बेल्ट्स हैं, कन्वेयर बेल्ट्स हैं, छोटे छोटे आइटम्स होते हैं जो कि गेयर्स हैं, ग्रीसिंग ऑयलिंग मेंटेनेंस है, वायर्स हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके पास हमेशा अवेलेबल होना चाहिए कि जिससे आप ब्रेकडाउन टाइम्स, क्योंकि अवॉइड नहीं किया जा सकता, इट कैन जस्ट बी मिनिमाइज इट, है ना. सो the importance is by reducing the amount of the time that we required in bottleneck operation due to breakdown or any maintenance or any periodic maintenance of parts. Suppose किसी parts का waiting time है तो आपको पहले से मालूम होना चाहिए कि उसकी लाइफ कितना है. It should be on the store. तो मैंने देखा है बहुत सारे प्लांट से, पीतमपुर में भी मेरे फ्रेंड्स की फैक्ट्रीज हैं, मैं वहाँ जाता भी हूँ, मैंने विज़िट किया है कि उनका एक स्टोर होता है प्रॉपर प्लांट एंड मशीनरी का, जहाँ पे वो सारे इक्विपमेंट्स बेसिकली आप शायद अब मैं उतना डिटेल में तो वो मैं नहीं जाना चाहता हूँ उस फैक्ट्री के, लेकिन मैंने उनके ऑपरेशंस देखे हैं कि उनकी मार्केटिंग अलग होती है, उनका सेल्स का अलग होता है, उनके जो नीचे जो बैग्स वगैरह बनते हैं उनका पूरा अलग क्राइटेरिया है, पीछे उनका पार्ट्स मशीनरीज को जो ऑपरेट करते हैं, जो इलेक्ट्रीशियंस हैं वो हैं उनके पास, तो रेगुलर जो उनको स्टाफ चाहिए वो उनके पास रहता है, जस्ट टू मिनिमाइज द डाउन टाइम. क्योंकि डिमांड इतना रहता है, हम थोड़ा सा मिस्टेक भी करेंगे तो इट गोना बी इम्पैक्टिंग द एंटायर. क्योंकि आपको आप समझें कि क्या होता है ना कि बहुत बार आपके पास ऑर्डर्स पाइलअप्स होते हैं, है ना, और बेस्ड अपॉन द कैपेसिटी आप उसको शेड्यूल करते हैं. तो सपोज़ आपने कहा कि मेरे पास कैपेसिटी 100 मेट्रिक टन का है पर डे का, और आपने ऑर्डर्स उस हिसाब से लिए होते हैं, तो एनी ब्रेकडाउन ऑफ वन डे विल गोना बी शफल द एंटायर शेड्यूल ऑफ द. अब आप एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको, मतलब आई थिंक बहुत अच्छा एग्जांपल होगा ये. जैसे रिलायंस है, रिलायंस एक्सट्रैक्ट क्रूड ऑयल इंडिया से क्रूड करता है, एक्सट्रैक्ट जैसे केजी बेसिन्स हैं हमारे, फिर इनकी रिफाइनरीज हैं जामनगर में, जहाँ ये क्रूड ऑयल बाय करते हैं रशिया से, वेनेजुला से, ईरान, मतलब जहाँ जहाँ सैंक्शंस नहीं है अभी, है ना. सो बहुत सारी जो देश हैं वहाँ से क्रूड ऑयल खरीदते हैं और अपने यहाँ से भी निकलता है. सो बेसिकली आप देखेंगे ना, रिलायंस हैज़ अ मोनोपोली इन पीपी. व्हाट इज़ पीपी हियर? पॉलीप्रोपिलीन. दिस इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ क्रूड ऑयल. तो आपको जान के हैरानी होगी कि मुझे ऐसा लगता है कि रिलायंस ऑपरेट्स इन मोनोपोली बिजनेस, और वो ऐसा बिजनेस सिस्टम लेके आते हैं कि जिससे जो कॉम्पिटिटर है यहाँ तो ख़त्म हो जाए, यहाँ तो उसकी सिग्निफिकेंस ज़ीरो हो जाए, मतलब ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाए. अब देखिए आप टेलीकॉम में भी कुछ उन्होंने ऐसे ही किया है ना. यहाँ पे मैं देख पाता हूँ, क्योंकि मैं आपको क्यों बता पा रहा हूँ, क्योंकि उनका जो रॉ मटेरियल है, फर्स्ट रॉ मटेरियल इज़ पॉलीप्रोपिलीन, एंड दिस इज़ नो other supplier than Reliance. So you can well understand the planning part which cannot be afforded to lose because of the bottleneck machines, because of failure of the system. तो वहाँ मैं देखा कि yes, actually उनके पेमेंट पहले हो जाते हैं, उनको शेड्यूल टाइम रहता है, इस दिन इस तारीख को वो आपका माल डिलीवर होगा. फिर हर जगह हर जो SEZs हैं, जैसे हर जगह इंडस्ट्रियल्स हैं वहाँ आते हैं. अब छोटे पॉलीप्रोपिलीन आप देखिए ऐसी चीज़ है कि जो आपको एक छोटे छोटे पार्ट्स में यूज़ होती है. इवन आप ये जो फ्लैप देख रहे हैं ना, इट इज़ मेड अप ऑफ पॉलीप्रोपिलीन. आप घर के जो पाइप्स हैं आपके, दिस इज़ मेड अप ऑफ पॉलीप्रोपिलीन. यानी मतलब आप छोटे छोटे इक्विपमेंट देखिए, चाहे आपका कीबोर्ड जो आपके सामने पेन यूज़ कर रहे हैं, दिस इज़ अ पॉलीप्रोपिलीन. जो बैग्स यूज़ करते हैं, सीमेंट बैग आते हैं, वो पॉलीप्रोपिलीन के होते हैं. तो पॉइंट क्या है मेरा कहने का आपसे कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मिनिमाइज द डाउन टाइम ऑफ एनी मशीन. ओके, सो आप
up till now we understand that operations management actually is not only about the small things which you see, but there are detail out. Like हम हमेशा देखते हैं कि कैसे हम कौन सी प्रोसेस को यूज़ करें. हम ये देखते हैं कि हमारा जो कस्टमर सेंट्रिक है वो क्या है, हमें रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है, इन्वेंट्री कितनी है, रिसोर्सेज क्या यूज़ कर रहे हैं हम लोग, चैलेंजेस कौन कौन से हैं. विल गोना सी इट लाइक टेक्नोलॉजी का चेंजेस है. तो आप ये देखिए, ऑपरेशन मैनेजमेंट इज़ वेरी डायनेमिक फील्ड. आप समझ पा रहे होंगे कि उसको एक एक ऑपरेशंस देखने हैं रोज़. मटेरियल का थ्रेशोल्ड लेवल क्या होना चाहिए, ऑर्डरिंग कब होनी चाहिए, प्रोसेस में कितना मटेरियल हमारा वेस्ट होता है, आउटपुट में कितना ऑलरेडी हमारे पास पाइलअप है, उसको फ्लो चार्ट बनाने हैं एक कि भाई मेरा एक रॉ मटेरियल यहाँ से चालू होगा और एंड में कैसे कैसे जाएगा, किस किस ऑपरेशन को कब कब करेगा, कितना टाइम लगेगा, कहाँ बॉटलनेक है, कहाँ मशीन्स की कैपेसिटी है. देयर आर लॉट मेनी थिंग्स व्हिच इज एक्चुअली डन बाय देम. सो एंड ऑब्वियसली इट इज़ अ प्रोसेस, कोई एक दिन में नहीं होता है. इसलिए मैं आपको क्या बोलता हूँ, काइजन इज़ अ वेरी गुड प्रोसेस वेयर यू वर्क ऑन इम्प्रूविंग द कैपेसिटी of your system with time, है ना. So Kaizen is very important. Now up till now we understand there are different ways. आप मशीन्स को पैरेलली ऑपरेट करते हैं, आपको समझना पड़ेगा कि कौन कौन से ऐसे एक्टिविटीज़ हैं जो कि पैरेलल रन हो सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो सीक्वेंस में चलेंगे. तो हमें इन सब के पीछे क्या करना पड़ता है, एक बैलेंस बनाना पड़ता है बैलेंस लाइन से. और ये सब करने के लिए इंटेंशन यही है कि हम कैसे कैपेसिटी को उसकी इंक्रीज करें. ओके, नाउ कैन यू सी दिस डिजाइनिंग द प्रोसेस टू मैच द प्रोडक्ट और सर्विसेज. आई थिंक दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. व्हेन यू सी दिस ग्राफ, वन इन द एक्स एक्सिस यू कैन सी द फ्लेक्सिबिलिटी एंड इन द वाई एक्सिस यू कैन सी द डिपेंडेबिलिटी, है ना. सो it's very important to understand the graph. See, when there are different processes where this production process has been classified. Example के तौर पे आपको मैं 4 एग्जाम्पल बताता हूँ. हाँ, जैसे आप घर बनाते हैं, तो घर यूनिक होता है, उनकी जगह अलग होगी, उनका टाइम अलग होगा, उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होंगी. सो वो एक यूनिक चीज़ है ना. सेकेंड, आप देखा होगा जब आप किसी वेल्डिंग शॉप के पास जाते हैं, आप बोलते हैं मुझे 2x4 की खिड़की चाहिए, 4 यूनिट चाहिए, जैसे मुझे हुक इधर चाहिए, तो वो आपको कस्टम मेड आपके लिए बना के देता है, राइट. जॉब शॉप. आप दवाइयाँ लेके आते होंगे घर में, है ना, या टॉफ़ीज़ लेके आते होंगे. सो दे कम्स इन अ बैच. वो एक गोली नहीं बना सकते वो. सो उनका यूनिट होना चाहिए 1000 यूनिट हम एक साथ बनाते हैं, 1 लाख यूनिट एक साथ बनाते हैं. सो दे कम्स इन अ बैच, है ना. और एक होता है फ्लो लाइन. एग्जाम्पल बताऊं आपको फ्लो लाइंस का, तो देखिए फ्लो लाइंस के बहुत अच्छा एग्जाम्पल्स है. जैसे कार असेंबलीज है ना. कार असेंबली लाइन कम्स इन द फ्लो लाइन, क्योंकि वो एक फ्लो में चलती है ना. सो कार की जो असेंबली लाइन है ना, इट इज़ अ फ्लो. मतलब असेंबली लाइन इटसेल्फ इज अ फ्लो, क्योंकि आपको मालूम है पहले स्टीयरिंग आएगा, फिर कार के चेसिस आएगी, इंजन आएगा, व्हील्स आएगी, उनका एक सिस्टम बना हुआ है और वो पैरेलली लेके जाते हैं. जैसे मैं आपको बोला नहीं कौन कौन से पैरेलल हैं, तो बहुत सारे यूनिट पैरेलल होंगे. मैंने तो देखा, इवन मेरे पास वीडियो भी है वहाँ के अंदर का, तो मतलब आप यूट्यूब से भी उसको चेक कर सकते हैं. सो दिस इज़ अ फ्लो लाइन वेयर द प्रोडक्ट इज़ बीन इन अ फ्लो. और उसमें ऑपरेशंस करने वाले जो रिसोर्सेज हैं, इंजीनियर्स हैं, वो एक जगह खड़े रहते हैं एंड दे यूज टू ऑपरेट इट एज पर देयर स्पीड. तो फ्लो. assembly line is designed where the high volume is there, especially in terms of automobiles. I think I am confident assembly line, जैसा मैंने आपको कार्स का बोला, यहाँ से from the bench press to the वेल्डिंग शॉप टू द पेंट शॉप टू द असेंबली लाइन. तो पूरा जो असेंबली लाइन है ये ऑटोमोबाइल्स में मैंने असेंबली लाइन का एग्जांपल ले सकते हैं. और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आप बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप असेंबली लाइन के थ्रू करते हैं. ओके, कंटिन्यूस फ्लो प्रोसेस.
ये मैं बोलूँगा कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे इट इज़ अ वेरी 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 हाई वॉल्यूम प्रोडक्ट. This can only be done with the continuous production. Example, it can be done without stoppage. हर किसी में स्टॉपेज है कि नहीं है, लेकिन किसी किसी बिजनेस में स्टॉपेज ही नहीं है. कैसे? अच्छा, ऑयल रिफाइनरीज कोई स्टॉपेज नहीं है ना. एक बार चालू हुआ तो उसको ख़त्म होना ही नहीं है. डे एंड नाइट इट्स गोना बी वर्किंग विद द सेम स्पीड, विद द सेम. Yes, similar in a chemical प्रोडक्शन प्लांट्स ऑल्सो. आप वो छोड़िए, शक्कर की कोई मैन्युफैक्चरिंग आप देखिए जहाँ आपकी शुगर बनती है, सो वहाँ कंट्रोल फ्लो है वेयर देयर इज नो स्टॉपेज. सो यू नीड टू क्लासिफाई द प्रोसेस बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट, है ना. जो आप प्रोडक्शन जिस लेवल का बनाना चाह रहे हैं वो प्रोडक्ट आपको किस ऑटोमेशन में मिलता है. ऑब्वियसली इट इज देयर आर सम पॉइंट व्हिच आई नीड टू हाईलाइट हियर इज, can you see at the bottom there's a column called flexibility. देख रहे हैं आपको flexibility even in x axis and y axis, है ना. तो flexibility means automation. मतलब where is the higher the flexibility, less is the automation. So it's a vice versa. So when you want to make anything customer where the customer requirement is a preference, where we cannot have to follow, you cannot go for the continuous process. Either you have to go with the assembly lines. आप पॉसिबल है क्या कि आप कार में कलर चेंज करा दें? बताइए, क्या पॉसिबल है कि आप शुगर ग्रेनुअल चेंज करा दीजिए? क्या पॉसिबल है कि आप मतलब कार में आपने कहा कि नहीं मुझे मेरा प्रेफरेंस है कि कलर मुझे चाहिए, और वो कलर नहीं आता है, तो ऑब्वियसली आपको प्री डिसाइड कलर से ही चूज करना पड़ेगा ना. तो दिस इज अ फ्लेक्सिबिलिटी. सो ऑब्वियसली आप घर चाहेंगे तो फ्लेक्सिबिलिटी है कि मुझे रूम साइज शुड बी माई 20x30. नॉर्मल 12x15 में भी चल रहा है, लेकिन मुझे तो 20x50 चाहिए या 30x50 का मेरा साइज होना चाहिए. वेयर एक्चुअली इट इज समथिंग कॉल्ड योर फ्लेक्सिबिलिटी इन द प्रोडक्ट. So based upon the flexibility, these classification of the product has been done. अब आप देखेंगे सबसे अच्छी बात है कि the highest flexibility in which, क्या मुझे बता सकते हैं किस उसमें सबसे highest flexibility है? Yes, project और a job shop. लेकिन आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि इसकी जो वॉल्यूम है, लो वॉल्यूम एंड लो स्टैंडर्डाइजेशन. तो जहाँ पे आप देखिए एग्जाम्पल भी हम लोगों ने मेंशन किया है, लाइक कमर्शियल प्रिंटर्स, है ना. दोज समथिंग विच इज बीन बेस्ड अपॉन द क्लाइंट रिक्वायरमेंट, दैट्स व्हाई देयर इज नो स्टैंडर्डाइजेशन. अब आप आईफोन खरीदेंगे और बोलेंगे नहीं मुझे आईफोन में साइज़ मुझे थोड़ा बड़ा चाहिए, 6.1 इंच का से काम नहीं हो रहा मेरे को थोड़ा बड़ा चाहिए, नॉन स्टैंडर्ड साइज, तो ही नॉट गोना प्रोड्यूस फॉर यू, है ना. लेकिन आप बोलोगे यार सब्जी वाले के पास भैया मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए, सब्जी वाला बोलेगा ठीक है आप दूसरा पसंद कर लीजिए. तो वेयर यू हैव द ऑप्शंस. सो वॉल्यूम कम है, स्टैंडर्डाइजेशन कम है. तो जहाँ स्टैंडर्डाइजेशन कम होगा वहाँ वॉल्यूम कम होगा, और जहाँ वॉल्यूम कम होगा वहाँ पे आप फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होगी. इन द सिमिलर लाइन आप देखेंगे हैवी मशीन्स में, बैचिंग में, where they able to discontinue the line in the particular batch. तो कार भी आप देखेंगे बैचेस में बनती है. जैसे आपने कहा कि VDI मॉडल इतने बनने हैं, है ना, VXI मॉडल इतने बनने हैं, बेसिक मॉडल इतना बनने हैं, तो उनके पास एक बैच होता है कि मुझे 10 ये बनाना है, 10 ये बनाना है, 10 ये बनाना है. तो सिमिलरली आप देखेंगे कि when you have a mix of product, when you have a multiple product in the business, then it will gonna use it. Obviously the volume will be lesser. मुझे लगता है वॉल्यूम फिर भी लो होगा उसका, होगा batches में. But if you go beyond that, after the batches, when there is a flow line where there is a high volume, where there are a major production is there, and
it is always the something where automobiles work. So यहाँ पे हमारा वॉल्यूम ज़्यादा होगा, हमारा प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज होगा, हमारे पास ऑप्शंस कम होंगे, मल्टीयर प्रोडक्ट्स नहीं होगा हमारे पास. So at that time you have as a operation manager you have to choose the assembly line. Similarly where you have a sugar refineries where आपको पास शुगर के मतलब वो स्टॉपेज होता ही नहीं है, कस्टमाइजेशन की कोई बात ही नहीं है. So these are the flow where you can see the cost is actually high when the volume is less. The cost is low when the volume is high, where the automation is high, where standardization, where automation is low and standardization is high. So you can count. First, flexibility is high, तो क्या होगा? Standardization क्या होने वाला है? Low होने वाला है. स्टैंडर्डाइजेशन लो है तो क्या होने वाला है? इसका प्राइस हाई होने वाला है कि लो होने वाला है? इट विल बी लेस. क्योंकि ज़्यादा स्टैंडर्डाइजेशन है तो हमारा प्राइस कम होता है. तो अब आपने एग्जांपल में आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देना चाहता हूँ. दिल्ली में एक हॉस्पिटल है जो बाईपास जो है वो बहुत 70-80 हज़ार रुपये में कर देते हैं. क्यों? क्योंकि उसमें पेशेंट्स मूव होता है. डॉक्टर विल नॉट गोना मूव. पेशेंट मूव होगा, एक को कोई एनेस्थीसिया देगा, आगे वो कट करेगा, इसको ट्रांसप्लांट करेगा, चौथा वाला पैक करेगा, पार्सल फिनिश. 3-4 दिन उसको बेड में रखेंगे हॉस्पिटल में, एंड गॉन. सो उनका प्रोसेस फास्ट हो गया है, ऑटोमेटेड हो गया है. अब लेकिन दूसरे हॉस्पिटल्स में जाते हो तो यू विल गेट अ स्पेसिफिक वन डॉक्टर. उनको पूरा सेटअप आपके लिए तैयार करना पड़ता है, आपको टीम बुलानी पड़ती है. दे हैव टू मेक द शेड्यूल एज पर योर. तो एक हॉस्पिटल है ना, और एक असेंबली लाइन है. तो ऑब्वियसली जो असेंबली लाइन का प्राइस होगा ना वो कम होगा, क्योंकि आप कंटिन्यूसली उसको आप एक हॉस्पिटल में हो सकता है कि 3-4 करता होंगे कोई बस बाईपास, लेकिन यहाँ तो वो 1 घंटे में 3-4 कर रहे हैं. सो दिस इज समथिंग वेयर स्केलेबिलिटी कम. सो मैंने आपको बोला ना, बिजनेस के 3 थंब रूल्स हैं, उसको नोट डाउन करके रखिए, लाइफ में बहुत काम आएगा. फर्स्ट इज सस्टेनेबल, सेकेंड इज स्केलेबल एंड थर्ड इज ब्रांडिंग. शायद मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया होगा, आई डू नॉट नो, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ बिकॉज एवरीथिंग हैज़ टू बी डिटरमाइंड विद द कॉस्ट. सो व्हेन देयर इज अ ड्यूटी ऑफ ऑपरेशन मैनेजर to implement any sort of balance line, either any operation like sequencing or parallel और बैलेंसिंग करना है आपको, तो आपको समझना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें हैं जो इम्पैक्ट करती हैं ऑब्वियसली. सो इट्स ऑलवेज बेटर टू स्टडी फ्रॉम द ग्राफ. यू कैन सी द प्रोडक्शन पर यूनिट इज इन योर एक्स एक्सिस, वेयर द वाई इज इन वाई एक्सिस. The key concept is to indicate that how the cost impact or affect my balancing the operation cost and the profitability of production. So if you break down the entire structure, you will find there the key concept of operational cost. Now what is operational cost? Actually comprises of all the expenses which are basically involved in production the product or any service you are giving. And a hospital is a service, hotel is a service, buying of new phone is a product. Okay, so it is very important to understand the operation in terms of cost, and the key concept here is the operating cost. And the key the operation cost is something called operation cost involve all the expenses that involved in the production of the product or services, which is very crucial for 2 factors. The one is the cost of unit produced, and minimize the cost for minimize the production volume. So the first, when you talked about the cost of units produced, it's involved the 2 types of cost. If one is a fixed cost and another one is a variable cost.
Now if you talked about the fixed cost, obviously the rent which you have to pay, the taxes, any overhead expenses you have to make. And variable cost is something which depend upon the how much volume you use. तो आपको रॉ मटेरियल आपका कितना यूज़ हो रहा है आपके प्रोडक्शन में, वो आपका वेरिएबल हुआ. सपोज आपने 100 यूनिट बनाई तो 100 यूनिट के हिसाब से आपका कंजम्पशन होगा. लेकिन जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो तो सेम होने वाला है, चाहे आप 100 बनाएं, चाहे आप 200 बनाएं, चाहे आप कुछ भी ना बनाएं, है ना. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट ऑपरेशन कॉस्ट ऑल्सो एट द कॉस्ट ऑफ fixed cost and variable cost. And it's always we have the important parameter, the second critical factor is minimizing the production volume. So the level of output at which the company must operate to create a break even, it should be knowing. Suppose आपको मालूम होना चाहिए कि मेरा ब्रेक इवन कब आने वाला है. एग्जाम्पल समझें तो सपोज़ एक शॉपकीपर है ना, क्योंकि आपको जल्दी समझ में आएगा, है ना. एक शॉपकीपर है, उसकी फ़ोन की दुकान है, उसके पास 3 स्टाफ हैं, वो खुद भी लगा हुआ है ना. सो कंसिडरिंग द एक्सपेंस ऑफ ₹20,000 पर मंथ, दे हैव टू फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ ₹60,000 per month for the staff to pay off. There's a rent of 20,000. Obviously, it is again it is 20,000. So it will gonna be cumulative. So it will gonna be 80,000. So similarly, if you see the 80,000, so it's important that he must be knowing that how much he has to sell, how much the phone he has to sell every day, month wise. It should be known to him. क्योंकि अगर आप वो एज अ मार्जिन वो समझ रहे हैं 1,000 रुपये एक फ़ोन में मार्जिन बचता है, सो ही हैज़ टू सेल 80 फोन्स फॉर टू अचीव देयर ब्रेक इवन, है ना. सो ये जो कॉस्ट है वो आपको मालूम होना चाहिए इसका कि दैट इज़ कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट. ठीक है, जब वो 80 फ़ोन्स हर जो बेचेगा उसके बाद ही वो प्रॉफिट में आ पाएगा. सो उसको मालूम होना चाहिए कि कितना जल्दी वो 80 फ़ोन्स बेच पाए वो शॉपकीपर, जिसके कारण 81st में उसका प्रॉफिट आना चालू हो, राइट. सो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर ऑपरेशन मैनेजर टू डील विद. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉस्ट. द वन इज़ फिक्स्ड एंड वन इज़ वेरिएबल कॉस्ट. फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में हमने बात किया. एंड देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल कॉस्ट. थर्ड आप देख पा रहे हैं, देयर इज़ अ TC, इज़ अ टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट इज कंप्राइजेज ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इनटू द क्वांटिटी. क्योंकि यहाँ वेरिएबल कॉस्ट क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है ना मेरा, इसलिए वो क्वांटिटी से मैंने मल्टीप्लाई किया है. ओके, सो वेयर Q इज़ माई क्वांटिटी ऑफ यूनिट प्रोडक्शन, जितना हमें क्वांटिटी लगेगा एक यूनिट प्रोड्यूस करने में. द नेक्स्ट इज़ अ टोटल रेवेन्यू. तो ऑब्वियसली अगर हमें टोटल रेवेन्यू निकालना है तो दिस कैन ओनली बी पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ द प्राइस पर यूनिट इनटू द क्वांटिटी विच बी सोल्ड. हमने जितना प्रोडक्ट बेचा और किस प्राइस में बेचा, विल हैव अ रेवेन्यू. सो R इज माई रेवेन्यू, मतलब कि प्राइस उसको R की जगह P ज़्यादा अच्छा रहता है, वो कोई बात नहीं. सो द R इंटू Q इज माई रेवेन्यू which is depend upon the how much quantity of product you sell and at what price you sell it. And the profitability obviously can be calculated by subtracting the total cost you have basically incurred. So when you take revenue, आपका कितना पैसा जनरेट हुआ और कितना आपने expenses किया, so you create a total profit out of it, and subsequently you able to understand there is a formula. जैसे TQ को रिप्लेस करें Q से एंड TC को रिप्लेस करें FC plus WC into 2 से, so there is a equation which come up. Okay, and the fifth concept which I really want to tell you, in the graph there is a point of cross section. Can you see the point of cross section is a break even point, and the break even point is very important. अब आप देखेंगे, मैं आपको बताता हूँ, जितना जल्दी उस बिजनेस का ब्रेक इवन आएगा उतना बढ़िया है, बेकार है, बढ़िया है, राइट. यस और नो, मतलब जिस बिजनेस का जितना जल्दी ब्रेक इवन उतना बढ़िया.
इसका मतलब ये पानी पूरी का बिजनेस सबसे बढ़िया होगा, क्योंकि उसका ब्रेक इवन तो शाम को ही आ जाता है। सुबह कुछ खर्चा करता है 200 400 500 रुपये, और शाम को 500 रुपये उसके आ जाते हैं। सो ऑब्वियसली ये वो बिजनेस बढ़िया है ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? स्केलेबल। क्या आप उसको स्केलेबल कर पा रहे हैं? तो अब आप देखिए बहुत सारे आजकल स्टार्टअप्स आ गए हैं। मैंने देखा है कि हमारी कॉलोनी के आगे तीखा पानी पूरी वाला है, उसने उसको स्केल अप कर दिया। कैसे किया? 2-3 जगह स्टोर्स खोल दिए, ऑटोमेट कर दिया। मतलब उसको उसने बोला कि वील यूज़ ओनली, पता नहीं आरओ वाटर यूज़ करते हैं वो लोग, और उनके नोजल्स हैं, उसमें सेंसर्स लगे हुए हैं। जो भी उनका आपको पानी चाहिए, आप अपने बताशे को उसके नीचे रखिए, वो एक सर्टेन अमाउंट है उसका, वो उसमें ड्रॉप होगा। जितना पानी पीना चाहें आप पानी पी सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो वो, लेकिन मतलब पॉइंट क्या है मेरा कहने का? इट्स ऑलवेज इम्पॉर्टेंट कि पानी बताशे वाला बिजनेस अच्छा है, लेकिन क्या हम स्केलेबल कर पा रहे हैं उसको? अगर नहीं कर पा रहे हैं तो वो काम नहीं करेगा। सो मैंने आपको क्या 3 चीज़ बनाया? स्केलेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी एंड ब्रांड। अगर ये 3 चीज़ साइमल्टेनियसली आप कर पा रहे हैं तो बिजनेस अच्छा है, नहीं तो वो बंद होगा। आप ये लिख लीजिए। सो आई जस्ट वांट टू एलैबोरेट मोर विद द एग्जांपल्स। जो हमारा डायग्राम है उसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। कैन यू सी दिस हॉरिजॉन्टल लाइन? दिस इज अ फिक्स्ड कॉस्ट। सो दिस इज रिगार्डलेस ऑफ व्हाट यू प्रोड्यूस। ये तो लगना ही लगना है। कोविड में बंद रहा, कुछ नहीं हुआ, कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ, लेकिन आपको फिक्स कॉस्ट रेंट लगा नहीं लगा, स्टाफ ने सैलरी ली कि नहीं ली, दैट इज अ फिक्स कॉस्ट। सो इट इज रिगार्डलेस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट यू प्रोड्यूस। सेकेंड इज टोटल कॉस्ट लाइन इज देयर। कैन यू सी? आप देख पा रहे हैं ऊपर की एक लाइन बनी हुई है जो कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट से मेरी स्टार्ट हुई है। वो बेसिकली क्या है? इट स्टार्ट विद अ फिक्स्ड कॉस्ट लाइन and the slope to upward, and this is actually reflecting the addition of variable cost as a production process. तो जितना हम उसको प्रोड्यूस करेंगे, वो जितना ज़्यादा उतना उसका वेरिएबल जो कॉस्ट है वो बढ़ता चला जाएगा। कम करेंगे तो कम होगा, ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा होगा। समझ में आ गई मेरी बात, है ना? अभी क्या मैं आपको बोल रहा हूँ, तीसरा लाइन है टोटल रेवेन्यू लाइन, कि देखिए इट इज स्लोप टूवर्ड फ्रॉम द जीरो। दिख पा रहा है आपको? रेवेन्यू मतलब जो टोटल सेल्स की लाइन आपको दिख रही होगी। तो सेल्स की लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रही है? सेल्स की लाइन स्टार्ट हो रही है आपकी जीरो से, और जीरो से अपवर्ड जा रही है। वो क्रॉस कर रही है पहले टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को, और वो फिर क्रॉस कर रही है मेरी टोटल कॉस्ट को। एंड वहाँ जो पॉइंट इंटरेक्शन कर रहा है, वही पॉइंट है मेरा ब्रेक इवन पॉइंट। ओके, एंड जो नीचे डार्क शेड ट्राइंगल बनाया हुआ, दिस इज माय will be the loss at that point of time, and my profit will be started after my crossing my break even point. Have you got my point? Okay, so अगर आप इस प्रोडक्शन यूनिट से समझ पाए हो कि आपको ये सब चीज़ें क्या किया, आपने क्या करने की कोशिश करी, you basically now move upward to make the qualitative understanding to the quantitative understanding. हम पहले समझ रहे थे कि कैसे रॉ मटेरियल, कैसी सारी चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं हमारे ऑपरेशन में, क्या क्या चीज़ रहती है। अब हम लोग मूव कर रहे हैं कॉस्ट की तरफ, जहाँ हम लोग ये देखेंगे कि डिसीजन मेरे को कॉस्ट रिलेटेड कैसे लेना है। ओके, सो आई थिंक दिस ग्राफ रियली टेल्स लॉट फॉर एनी ऑपरेशन मैनेजर टू अंडरस्टैंड the importance of total fixed cost, total sales, total revenues, profits, losses, break-even point. There are not many things which actually this small graph shows. Now, there are very important concepts regarding the fulfillment of customer demands. See, every organization have come with a different objectives. Right, and at very initial stage it's very important to realize the objectives in terms of customer priority. So मैंने आपको बोला कस्टमर 3 तरह के प्रायोरिटीज होते हैं, हमने लास्ट कुछ समय पढ़ा था। सबसे पहला प्रायोरिटीज, either it will be a time conscious customer, either it can be a cost centric customer, either it can be a quality centric customer. So
why they are difference? They are only difference in their lead time. मतलब अगर एज अ ऑपरेशन मैं इसको देखूं तो मैं सबको देखने की जगह मैं क्या देखूंगा? लीड टाइम. क्या लीड टाइम है? देखिए जो टाइम सेंट्रिक है उसको जल्दी चाहिए, जो कॉस्ट सेंट्रिक है उसको लेट चलेगा, और जो क्वालिटी सेंट्रिक है उसको भी सही टाइम पे चाहिए. मतलब जितनी जल्दी से उतना बेटर है. वो क्वालिटी मुझे मिलना चाहिए, मैं उसके लिए वेट भी कर सकता हूँ. ओके, सो मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ, द लीड टाइम, मतलब लीड टाइम जो प्रोडक्ट आप तक पहुँचना चाहिए ना, इनका टाइम अलग अलग है. कैसे? फॉर द टाइम कॉन्शियस पीपल, दे नीड इट एट दैट पर्टिकुलर टाइम. उन्हें सबसे जल्दी चाहिए प्रोडक्ट. मुझे तो आज चाहिए, मुझे आज रिक्वायरमेंट, दैट्स ऑल. कॉस्ट सेंट्रिक और क्वालिटी सेंट्रिक कम्स इन बिटवीन, क्योंकि मुझे क्वालिटी ये चाहिए, मुझे थोड़ा वेट करना पड़ेगा, तो आई एम ओके विद इट. जस्ट टेक एन एग्जाम्पल. कई बार सपोज मुझे आईफोन खरीदना है, 16 में मुझे वो वैल्यू नहीं दिख रहा है, तो आई एम गोना वेट फॉर 17. तो मेरे को वो क्वालिटी चाहिए, लेकिन मैं 2017 आईफोन 17 खरीदूंगा 1 साल बाद. आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको? So these are people which can actually wait for so long for that particular time. क्योंकि मैं कॉस्ट सेंट्रिक नहीं हूँ, मेरा क्वालिटी इंपॉर्टेंट है. एंड इन बिटवीन देयर आर वन कस्टमर विच कम, दैट इज आवर कॉस्ट सेंट्रिक. सो जब भी आपको कॉस्ट की बात करें तो वो बीच में आते हैं. सो अगर मैं एज अ क्यूमुलेटिव इसको करूँ, ऑपरेशन मैनेजर की तरफ से देखूँ, तो मेरे लिए क्या है, हर कस्टमर के लिए जो रीच है वो डिफरेंट होने वाली है ना. और उस डिफरेंट को कैप्चर करने के लिए मैंने 2 स्ट्रैटेजीज बनाई हैं. द फर्स्ट इज मेक ऑफ गुड एंड मेकिंग टू ऑर्डर. सो MTS एंड MTO. समझ पा रहे हैं आप लोग? MTS मीन्स मेक टू स्टॉक. ये ऑफ गलत लिखा है यहाँ पे यार, है ना. मेक टू स्टॉक है एक्चुअली. सो जब आप मेक टू स्टॉक करेंगे, मतलब आपको क्या, किसको आप कर रहे हैं प्रायोरिटाइज? आप उनके लिए बना रहे हैं जिनके लिए टाइम इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि वो तो कभी भी आएंगे और मेरे को ये चाहिए, हम लेके जाएंगे. अब सब्जी वाले के पास जाते हैं और वो बोलते हैं कि भाई साहब रुक जाइए ना, मैं आपको शाम तक दे दूंगा. वो बोलेगा भाई मुझे सब्जी अभी बनानी है, वो कस्टमर की नीड आज है, मैं नहीं वेट कर सकता हूँ. समझ रहे हैं मेरी बात? सब्जी वालों को जो सब्जी लेना है वो सुबह खरीदना पड़ती है उनको, जो क्योंकि उनके जो कस्टमर के रिक्वायरमेंट है ना, इट इज समथिंग लाइक मेक टू स्टॉक ओनली. ये बात समझ में आ गई आपको? सो फर्स्ट आप देखिए, व्हेन यू डू समथिंग फॉर मेक टू स्टॉक, मतलब आपको जो भी बना रहे हैं आपको स्टॉक करना है उसको. सो आपका लिए जो कॉस्ट होगा ना फिनिश गुड का, वो हमेशा ज्यादा होगा. यस, हमेशा ज्यादा होने वाला है. क्यों? क्योंकि आपकी इन्वेंट्री हमेशा लॉक रहने वाली है, इन टर्म्स ऑफ रॉ मटेरियल, इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस एंड इन टर्म्स ऑफ स्टोरिंग द फिनिश गुड इन्वेंट्री. सो जब आपकी प्रायोरिटी आपके कस्टमर जिनका टाइम इंपॉर्टेंट है, उनके लिए आपको फिनिश टू इन्वेंट्री करना पड़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन द लीड टाइम. सेकेंड स्ट्रैटेजी मुझे ज़्यादा पसंद आती है, दैट इज़ फॉर मेक टू ऑर्डर. शायद मैंने आपको एग्जाम्पल्स बताए होंगे. ऑब्वियसली एग्जाम्पल दिया था डेल का. डेल गिव्स द लैपटॉप्स इन अ मोस्ट इकोनॉमिकल टू द स्टूडेंट्स, because most of the students are really a cost centric customers for them, and they can wait a while for it to minimize the cost of the product. And for that they used to purchase the product before they actually do the entire transaction before they're gonna buy it, and they get the product after 7 days, 10 days, and that time where any manufacturer will get to assemble the goods, so that to give you into that price, because they are minimum in their stock levels, and also simultaneously they have a minimum variable cost. So can you able to understand this?
द मेक टू स्टॉक इज ऑलवेज अ कॉस्टलियर. आप दुकान में कोई चीज़ जाएंगे ना तो वो आपको महंगी पड़ती है. आपको फील किया होगा, मोबाइल फ़ोन जब लेते होंगे, और इवन अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि इवन आप कुछ अमेज़ॉन बिग बिलियन सेल होती है अभी, where you can see the prices are crashed too much, and if you go at the same time to the shopkeepers to ask for to match that price, they say no. Because why? Because their products are basically in the inventory from last 10 days, and that add on their money into it. So obviously the operation manager has to fulfill the customer demands. So based upon their customer needs, they has to make the operations either to make to goods or make to order. And if you go for the make to order, it will minimize the cost of stock levels, as well as in the process, as well as it will minimize your finished good also, and also minimize the variable cost. Now if you go back in the 2 slides where I am showing the graph of the break even point, can you please take little 2 slide back? Can you take the slide back please? Yes, no, next please. So can you see there is a variable cost जो कि 0 से चालू हो रही है मेरी. देखिए चालू हो रही है total variable cost. So this variable cost is basically raising per unit time. And क्योंकि आपके पास पैसा आ गया है तो variable cost तो 0 हो जाएगा ना आपका, क्योंकि आपने कुछ नहीं लगाया. वेरिएबल कॉस्ट में तो आपको कस्टमर ने पैसा दिया और आपने मैन्युफैक्चर किया. सो दैट इज समथिंग मेक टू ऑर्डर. ओके, सो आई थिंक डेल ने बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी यूज़ किया और उसने बहुत ही कम समय में बहुत बड़ा मार्केट इस स्ट्रैटेजी को लेके कैप्चर किया. हाँ, ऐसा नहीं है कि उसके स्टोर्स नहीं हैं ऑफलाइन इट इज़ ऑल्सो अवेलेबल, बट बहुत ही पिक्यूलर जगह में है, और जहाँ पे वो चाहते थे कि अपने कस्टमर किसी भी हालत में लूज़ ना करें हम लोग, तो उन्होंने कहा कि वील गोना स्टार्ट सम स्टोर्स इन एवरी सिटीज़. तो उनके बहुत ज़्यादा आउटलेट्स तो नहीं है, लेकिन येस देयर आर आउटलेट्स वेयर दे प्रिपेयर देयर स्टॉक्स टू मेक एंड दे सेल इट एट द सेम प्राइस. सो आई थिंक वी हैव नाउ कम टू द एंड. तो अभी तक हमने समराइज़ करेंगे छोटा छोटा हमने क्या क्या किया, वो आप मुझे प्लीज़ समराइज़ कर दीजिए या मैं कर देता हूँ. आप लोग कर पाएंगे समराइज़? हमने ओके हमने सिस्टम एलिमेंट्स की बात करी, वेरिएबिलिटी की बात करी, कैसे हम अपने प्रोसेस कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं, बॉटलनेक्स को कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं. हमने देखा कि कौन कौन से डिज़ाइंस हैं बेस्ड अपॉन द प्रोडक्ट के हिसाब से, ऑटोमेशन के हिसाब से. हायर द ऑटोमेशन लेसर विल बी द फ्लेक्सिबिलिटी. हायर द ऑटोमेशन हायर विल बी द स्टैंडर्डाइजेशन, एंड हायर विल बी द ऑटोमेशन लेसर विल बी द प्राइस. ओके, सो ऑटोमेशन जितना ज़्यादा हमारा होगा उतना हम स्केलेबल कर पाएंगे, राइट. सो लो हाउसिंग आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा. इट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन यू मेक द हाउस इन बल्क्स with the same design, with the same drawing, everything is same, right? So we have also seen how to balance the operational cost in terms of understanding the fixed cost, variable cost, revenues, profits and all. So this is all depend on, क्योंकि मैं हमेशा ऐसा फील करता हूँ कि कोई भी चीज़ आप करें, it has to be on the basis of usability, है ना. मैंने आपको लास्ट टाइम शायद कुछ समझाया भी था यूजेबिलिटी के ऊपर, कि जिस चीज़ को आप ज़्यादा यूज़ करते हैं वो आप पहला मतलब वो आप अपने पास रखते हैं, है ना. जैसे एप्लीकेशंस, आप फ़ोन यूज़ करते होंगे तो एप्लीकेशन में आपके फ्रंट स्क्रीन में क्या होता है, वो एप्लीकेशंस होते हैं जो आप ज़्यादा यूज़ करते होंगे, राइट. सिमिलरली आपको समझना पड़ेगा कि कस्टमर की भी वही करते हैं वो लोग भी. कौन कौन से डिमांड है, कौन कौन से टाइप ऑफ कस्टमर्स है जिसको हमने डिफाइन किया. बेस्ड अपॉन दैट वी हैव अंडरस्टैंड कि वेदर वी हैव टू मेक इट फॉर स्टॉक और वी हैव टू मेक इट फॉर ऑर्डर. So there are some implications. With this, we're going to close it today, and thank you for your patience. We'll meet it next week on Tuesday.
at 11:30. Thank you. मैं आपसे बोलना चाह रहा था कि ऑपरेशन इज समथिंग वेयर यू इट इज़ आउट ऑफ द बॉक्स फर्स्ट. आप कहीं अगर आप पानी पूरी वाले के पास भी खा रहे हैं, इसको प्लीज़ म्यूट कर देंगे क्या? मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि ऑपरेशन इज़ लाइंग एवरीवेयर. अब जैसे आप एक अपना स्वीट्स में भी अगर कुछ स्वीट्स लेने जाते हैं एंड ओनर इज़ नॉट देयर, ऑब्वियसली देयर इज सम सिस्टम हु इज़ वर्किंग बिहाइंड इट. So you need to understand what are their operation hacks are there. You need to understand what are system elements they use to calculate. है ना? तो आप ऐसा नहीं है कि you have to stick with this presentation. There are so many things which are going all around. चाहे आप मिलिट्री में देखिए, there are set of operations which need to be followed. So मैं आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैं आपसे ज़रूर करना चाहूँगा और वो मैं भी फॉलो करता हूँ. आप किसी भी काम को करने से पहले प्लानिंग करें उसकी, प्लीज़. जैसे सपोज आपको कोई प्रेजेंटेशन भी बनाना हो ना, तो यू मस्ट प्लान इट आउट कि मुझे क्या क्या चीज़ करना है, क्या क्या एड ऑन करना है, सो दैट आपका टाइम जो सोचने में जाता है ना बाद में, तो बहुत टाइम ले लेता है. एग्जाम्पल्स आप बिकॉज यू आर अ स्टूडेंट, आई वॉन्ट टू मेक इट मोर रियलिस्टिक बाई गिविंग द एग्जाम्पल ऑफ प्रिपरेशन फॉर एग्जामिनेशन ऑल्सो नीड्स अ प्लानिंग. वॉट यू हैव टू रीड, हाउ मच you have to read, what you have, what resources you have. So everything, when you plan it out, it's become easy to execute, yes or no. So I think operation is everywhere where you go, where you walk around, where you see anything. आप देखिए एक सोसाइटी में आप एंटर भी करते हो तो there is a gate where is a guards which take the reference where you are going now, and when you enter to that society you'll find an individual guard sitting in the block wise. So there are operations which are executed in day-to-day life, and you can basically learn from not from the class but also every business. आप कहीं भी खाना खाने जाएं, उसका ऑपरेशन देखें, समझें, ऑब्जर्व करें. चाय पीने जाएं, ऑपरेशन देखें, क्या हो रहा है, क्या है इसके पीछे. So if you learn those things, practically that will gonna be case study. So the third assignment will be like understanding any local business which is operated without presence of owner. It can be any business like Naturals ice cream भी आप ले सकते हैं, आप अपना स्वीट्स भी ले सकते हैं, आप कोई भी ले सकते हैं. You have to prepare the case study about entire process. Okay, so you have to create a graph जो हमने evaluating the entire process, how it is operate, है ना, वो आपको बनाना है. and try to add the cost into it कि हम उसका operational cost भी निकाल सकें, assuming कर सकते हैं आप उसको. So this is the assignment number 3. So with this I'm gonna close it and thank you for your patience.